أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، میثاق لیا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ پکڑو لو جو بھی تمہیں دیا جا چکے ہے، جو بھی احکامات تمہیں دیے جا چکے ہیں، قوت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اور یاد کرو اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، اور کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ کی آواز باقاعدہ ان سرداروں کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ نعمت ملنے کے باوجود بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، وہ جو سردار گئے تھے، کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کی اس نافرمانی پر اللہ کی ذات جلال میں آ گئی، اور اللہ کی ذات جب جلال میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ جتنے بھی سردار تھے سارے کے سارے سرداروں کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بڑا پریشان ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے سردار ہیں، اگر یہ مر گئے، میں ان کے بغیر قوم میں گیا تو بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اور قوم میری بات نہیں سنے گی، کیونکہ یہ ان کے سردار ہیں، انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا وہاں پر؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ اسی کو یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تو وہ پھر بھی نافرمانی پر ہی اترے، اور پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہنے لگے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ، طور پہاڑ جو ہے اس کو یوں اوپر کھڑا کر دیا کہ ابھی بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اور تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا، تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے گا۔ ڈر اور خوف دیا۔ تو جب انہوں نے کوہ طور پہاڑ کو دیکھا اپنے اوپر آتے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ ہمارا اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور وعدہ لیا ان کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میثاق، وعدہ لیا کہ تم ایک رب کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کی مان کر چلو گے، ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے۔ اس پر ان سے وعدہ لیا گیا۔ وعدہ بھی کس طرح لیا گیا؟ بڑی سختی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، خذوا ما آتیناکم بقوہ،
ले लो, पकड़ो इसको सख्ती के साथ, मजबूती के साथ पकड़ो इसको। जो भी तुम्हें दिया जा रहा है बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीही, और जो कुछ इसके अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें अहकामात दिए हैं उनको याद रखना, भुला मत देना। वज़्कुरू मा फ़ीही वअमलू मा फ़ीही, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल फरमाई है उस किताब पर अमल करते रहना। अगर तुमने उस किताब को छोड़ दिया, अगर तुमने उस किताब की नाफरमानी की, उसके अगेंस्ट गए और उस किताब के अहकामात को पूरा ना किया, तो फिर तुम अल्लाह के नाफरमानों में से हो जाओगे। और अगर अमल करोगे तो क्या मिलेगा? वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ पर लअल्ला या यकीन क्या है? लअल्लकुम यकीन क्या है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे। अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से बंदा मुत्तकी बन जाता है। अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेज़गार बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज कुरान को भी अपना लो, कुरान को सीने से लगा लो। अल्लाह के मुत्तकी बनने हैं, अल्लाह के पसंदीदा मुकर्रब बंदे बनने हैं, तो ये कुरान को अपनाना होगा, इस कुरान को सीने से लगाना होगा। और अल्लाह के मुकर्रब बनने के बाद, मुत्तकी बनने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम जिक्र किया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे नज़दीक फिर वो सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे बंदे मेरे वही हैं जो तक़वा इख्तियार करने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम मुत्तकी बन जाओगे कुरान पर अमल करके, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे शख्स के लिए रास्ते खोलता चला जाऊँगा, दुनिया हज़ार रास्ते उसके तंग कर दे लेकिन मैं फिर भी उसके लिए रास्ते खोलता चला जाऊँगा। और सिर्फ यही नहीं, व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर मैं ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ दूंगा कि उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा, उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। मेरे अल्लाह का वादा है ऐसे लोगों के साथ जो कुरान पर अमल करने वाले हैं, जो कुरान को सीने से लगाने वाले हैं, जो कुरान से हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस कुरान को थामने से तुम मुत्तकी बन गए ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह मिटा दूंगा। युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही, मिटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारे गुनाहों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इतनी बड़ी सिफत है तकवे वाली, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओगे, और मुत्तकी के इनामात बड़े बड़े हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, उसके बावजूद भी तुमने नाफरमानी की, उसके बावजूद भी तुमने नाफरमानी की। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मेरा फ़ज़ल ना होता ना, तौबा की सूरत में या सरदारों को दोबारा ज़िंदा करने की सूरत में, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अज़ीमुश्शान नबी की सूरत में, या किताबुल्लाह की सूरत में, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मेरा तुम पर फजल ना होता ना, अगर मेरी रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसती ना होती ना, तो तुम खासिरीन में से हो जाते, अल्लाह ताला तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देते। दुनिया में भी खसारा तुम्हारा मुकद्दर बन जाता और आखिरत में भी तुम खसारे में ही पड़े रहते, कोई तुम्हें पूछने वाला ना होता। यह अल्लाह की रहमत है, यह अल्लाह की अज़मत है, यह अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज इंसान जो है वो इंसानी शक्ल के अंदर मौजूद है, आज इंसान जो है वो इंसानी शक्ल के अंदर इस दुनिया में मौजूद है, वरना इंसान के आमाल ऐसे नहीं है कि वो इंसानी शक्ल के अंदर बाकी रहे।
हमने पिछली उम्मतों के बहुत सारे अज़ाब के वाक़यात पढ़े हैं। कुरान ने भी हमें बताए हैं कि एक एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ऐसे ऐसे ख़तरनाक अज़ाब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजिल फरमाए कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और कुरान ने एक एक नाफरमानी उनकी ज़िक्र की है कि इस नाफरमानी की वजह से फ़लाँ कौम की पकड़ हुई, इस नाफरमानी की वजह से फ़लाँ कौम की पकड़ हुई। और आज वो सारी की सारी नाफरमानियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं। आ जाए कुरान को थामने वाले बन जाओ, कुरान को सीने से लगाने वाले बन जाओ। कुरान को सीने से लगाएंगे, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होगी, अल्लाह का फ़ज़ल हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी सरखुरू फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबियाँ और बुलंदियाँ अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ किया करें अपने प्यारों के लिए, अल्लाह ताला हमारे सारे के सारे प्यारों को सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने प्यारे हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपने लिए भी दुआ किया करें, मेरी सेहतयाबी के लिए, मेरे बच्चों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।